So last day we have gone through the classification of epithelium tissue, where we have come across the 18 different types of tissues which are present in the body. Now, after listing all those tissues, today we are going to individually experience a particular tissue type, what characteristics it share, and how it is being present within the body in a different classical part, so as to execute the role in physiology. So, to continue with the first category, on the basis of function, what has been mentioned, that is covering epithelia, the first category. Now, among covering epithelia, based on the number of layers, simple epithelia, right? So within those simple epithelia, if we at a glance compare a series of epithelia, that is those are respectively the first category, squamous, followed by the next category, cuboidal. Cuboidal itself are of three types. Simple cuboidal, simple cuboidal, ciliated, and simple cuboidal brush border. Now this is the way you should compare. इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चल जाएंगे और एक कंपैरेटिव स्टडी भी हो जाएगा. So follow the presentation. First of all, to begin with, we'll continue with the columnar thereafter. Squamous, as the name suggests, made up of flat cells. Due to their arrangement, they are better called pavement epithelia, and a tiles-like fitting, hence called pavement epithelia. They do the basic functioning of lining oblique covering any body external internal surfaces. Their basic role is to line up, nothing else. एक फिनिशिंग वर्क देना, लाइनिंग कवरिंग करना उसका रोल है. सिंगल लेयर ऑफ flat cells, and if it is so, then if we apply all these characteristics what you have experienced last day, this is the basement membrane, and cells are simply arranged over them with a tight fitting with cell junctions, and the respective examples are, there are many such examples, लेकिन मैं कुछ prominent examples यहाँ highlight करूंगा, so at tip of tongue you could remember them. तो एक तो सबसे पहला जिस पे मैंने illustration last class बनाया था, endothelium of blood vessels, followed by alveoli in lungs. लंग्स के जो फंक्शनल यूनिट एल्वुलाई होते हैं वो इसके बने होते हैं, फॉलोड बाय पोडोसाइट लेयर इन Bowman's capsule, and next is the descending limb of Henle's loop. So the
four prominent. In the upcoming classes with the physiology you will come across many such examples, लेकिन इस chapter के through you have to recall and remember these four. The next category, let me first of all mention the illustration. Simple cuboidal, where the basement membrane possesses a single layer of cuboid shaped cells, again tightly attached by cell junctions, right? So characteristically they are present in such epithelium is present in example. I'm just directly coming to the example क्योंकि जो भी इसकी basic properties है वो तो diagram में illustrate हो ही रहा है. Cube shaped cells, cuboid shapes, single layer on the basement membrane, and wherever they cover they mostly do the role of secretion. Covering के अलावा secretion उनका role है. The point to be noted, इसका सबसे prominent example है DCT of nephron. DCT of nephron. अभी मैं एक सिंगल इलस्ट्रेशन ऐसा बनाऊंगा, जितने भी अभी एपिथेलिया एट अ ग्लांस 8 तरह के मैं आपको बताऊंगा, उसमें से आप 5 तरह के एपिथेलियम एक ही एग्जांपल में आपके सामने आ जाएगा. ये उस डायग्राम की खासियत होगी. तो लेट मी कम टू दैट पार्ट. तो अभी अभी आपने पढ़ा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया कवरिंग कैटेगरी on the basis of function, number of layers and cell shape. The first category, that is simple cuboidal covering epithelia, characteristically found in DCT of nephron as well as इसका और एक बेस्ट एग्जांपल है जर्मिनल एपिथेलिया. जर्मिनल जो स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया जर्मिनल एपिथेलिया है वो बेसिकली होता है सिंपल क्यूबॉइडल. वो तो मॉडिफाई होके वो गोनाड्स में मौजूद रहकर गैमेट सेल्स बनाने का काम करते हैं. ये उसकी स्पेशलाइजेशन है. बट रादर बेसिकली वो होता तो क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल ऑन द बेसिस ऑफ शेप. इसलिए खुद जर्मिनल एपिथेलिया सिंपल क्यूबॉइडल का एग्जांपल है. एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज ascending limb of Henle's loop. डिसेंडिंग लिम्ब में फ्लैट सेल्स होते हैं और असेंडिंग लिम्ब में क्यूबॉइडल. ये बहुत जरूरी है जानना आज ही, क्योंकि आने वाले दिनों में किसी दिन मैं चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम पे पहुंचूंगा, वहां इस बात को ही है ना एक कंक्लूडिंग बेसिस लेके हम आगे फिजियोलॉजी समझेंगे. क्योंकि दोनों का रोल ऑस्मो रेगुलेशन में है. किसमें है? हेनलेस लूप जो होता है हर नेफ्रॉन का क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन. और उसको करने के लिए दोनों का सेल का नेचर अलग है. एक जगह फ्लैट सेल्स है जो सिर्फ पानी को अलाउ करता है एब्जॉर्ब होने के लिए, और एक तरफ क्यूबॉइडल सेल्स है जो सिर्फ किसको एब्जॉर्ब करता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को. तो ये डिफरेंस क्यों आता है वो उस दिन हम देखेंगे. दैट नेचर ऑफ स्टडीज फिजियोलॉजी. बट अगेन टू जस्टिफाई उस फिजियोलॉजी को समझने के लिए पहले से हिस्टोलॉजी क्लियर होना चाहिए. तो आज आपके सामने 3 प्रोमिनेंट एग्जांपल आए which just gives an revealing event of what is simple cuboidal cells. Yeah, epithelia indeed. Okay, the next category, let us move ahead. Again, the basement membrane with cuboid shaped cells arranged as a single layer, but this time as mentioned in the characteristics, last day you have gone through a series of around 15 points. उसमें एक जगह लिखा था कि दो epithelia is basically known for what it is basically known for. It is known for covering. That's its primary function. But apart from it, undergo modification to actually participate in some allied functions. Body की कुछ अतिरिक्त extra काम में अपना contribution दे सके, and hence it shows some modification, some extra structures it bear. One of them is cilia, and such an epithelia is ciliated epithelia. So that's the appearance, presence of cilia on the free surface, and simply they help in, मैंने mention वहीं कर दिया था, propelling and conduction. किसी भी चीज को जो है एक बोट के रैशेट की तरह, है ना, नाव का चप्पू जिसे कहते हैं, उसकी तरह प्रोपेलिंग करते हुए, आगे पीछे धकेलते हुए, है ना, चीजों को कंडक्ट कर देना, ऐसा किसी तरह का काम कर देना. One of the most evident example of ciliated cuboidal covering epithelia is again Bowman's
कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन, या मैं लिख सकता हूं रीनल ऑफ रीनल ट्यूब, रीनल ट्यूब मीन्स नेफ्रॉन, जिसका इंटीरियर मोस्ट पार्ट एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, डबल लेयर्ड, उनमें से एक लेयर जो है इस एपिथेलिया, वन ऑफ द लेयर इज मेड अप ऑफ दिस एपिथेलिया। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड। इसका एक अच्छा, मैं एक एक एग्जांपल कहीं कहीं एक ही लिख पाऊंगा, क्यों? कारण है मेन उसी का ही क्वेश्चन आता है, इसके अलावा और पढ़ने की जरूरत नहीं है। करीब ऐसे कर करके करीब 50 एग्जांपल्स हो जाएंगे, बाकी एक्स्ट्रा तो आपको पता चल जाएगा, बुकलेट्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन दिमाग में एक प्रायर रहना चाहिए इलस्ट्रेशन कि किसी भी एपिथेलिया की मौजूदगी कैसे कहां हो सकता है। दीज आर द एग्जांपल्स। नेक्स्ट प्रोमिनेंट एपिथेलिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन lined with cube shaped cells, but the free end जो है वो finger like foldings बना लेते हैं। ऐसे finger like foldings बना लेते हैं। Now it is the brush border cuboidal epithelia covering epithelia and exclusively found, as already mentioned, if any epithelia is having a brush border nature, कैसा nature है? They simply help to increase the surface area, increase the, now it is again characteristically found in proximal convoluted tubule, PCT, of nephron. Proximal convoluted PCT region of nephron. The next category, on the basis of shape, columnar, but columnar itself is of 4 types. What they are? एक तो simple columnar, then simple columnar ciliated, stereociliated, and at last brush border. Brush border. पहले मैं चारों के डायग्राम एक साथ, ये रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन, Now, point to be noted, one of the prime feature what you should remember regarding simple columnar epithelium अगर कोई है, वो point में यहाँ mention करना चाहूंगा। Cells have basal nucleus. कैसा nucleus है? Means cells centrally placed होना चाहिए large, लेकिन columnar cells में जो cell है बीचों बीच से थोड़ा नीचे की तरफ towards the base. The cells have basal nucleus, ये इसकी खास पहचान है columnar epithelium का। ठीक है, rest simple single layer of cells on the basement membrane, and would like to know the characteristic example. Now again, this epithelia is expected to present throughout the body in many places, but one of the prominent example जो पूछा जाता है, that is stomach lining, है ना? Stomach mucous membrane lining, स्टमक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन थ्रू आउट, आप अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ के आए होंगे कि द होल एलिमेंट्री कैनाल इज हिस्टोलॉजिकली मेड अप ऑफ 4 कैरेक्टरिस्टिक लेयर। कितने लेयर्स होते हैं? पूरी एलिमेंट्री कैनाल, राइट फ्रॉम द बकल कैविटी टिल एनल, एनस तक, थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनाल आप कहीं भी गुजर जाए,
everywhere you will find that tube, alimentary canal जिसे हम कहते हैं, successively made up of how many layers? 4 layers. Serosa outermost, फिर आता है muscularis, ठीक है, जो खुद 3 लेयर के होंगे, 2 लेयर के हो सकते हैं, LMF, CMF, OMF, मसल्स, ऑब्लिक मसल्स कहते हैं, वो तो सिर्फ स्टमक रीजन में होता है. व्हाटएवर, मस्कुलरिस लेयर, कौन सा लेयर? सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा. और सबम्यूकोसा के बाद जो इनर मोस्ट लेयर होता है, सबसे अंदर जो एक्सपोज्ड लेयर, इनर मोस्ट लाइनिंग, म्यूकोसा. विच लेयर? उसको म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ठीक है, तो व्हाटएवर, वो तो आने वाले दिनों में डिटेल्स देखेंगे. बट कमिंग टू द पॉइंट इज, जो स्टमक रीजन में म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, उसमें जो लाइनिंग एपिथेलियम की मौजूद होता है, पार्टिसिपेट करता है, दैट इज योर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम. यही इंटेस्टाइन में जाके चेंज हो जाता है, वहां फिर सिंपल कॉलमनार नहीं होगा, क्योंकि वो सरफेस ही तो है जो थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग रीजन को अलग अलग तरह के फिजिकल केमिकल एक्टिविटी में एसोसिएट और हेल्प आउट करते हैं, जिससे जाके एक बहुत ही प्रिलिमिनरी फंक्शन, बॉडी का वर्सेटाइल वाइटल फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. डाइजेशन एंड, तो फिजियो में इस बात को हम साबित करेंगे बाय गोइंग थ्रू दोज ऑल एस्पेक्ट. बट बिफोर दैट, simple columnar category with an exclusive example, that is stomach mucous membrane is made up of this epithelia, followed by next. Again, elongated columnar cells, but presence of those structures called cilia. And this is characteristically present. Example, oviduct of female reproductive system, understood? But then also I am mentioning it, FRS, female reproductive system. And now it's well known कि oviduct में the product ovum, as a result of ovulation, whenever being released, that ovum has to be propelled. उसको धक्का मार के प्रोपेलिंग करके साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला तक पहुंचाना. एंड देयर आफ्टर ऑल्सो द डेवलपिंग, अगर फर्टिलाइजेशन होता है और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, और हो जाता है, सो कॉल्ड जो एम्ब्रियो, जाइगोट, और वो एम्ब्रियो बनेगा, द एम्ब्रियो शुड प्रोपेल डाउन, शुड जस्ट हैव अ रोल डाउन टुवर्ड्स द यूट्रस. तो धक्का खा के कैसे यूट्रस तक पहुंचेगा? बाय द प्रोपेलिंग एक्शन ऑफ सीलिया. एंड देयर द सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट ओवर इज सिंपल कॉलमनार सीलिएटेड. ऐसे spiny extensions, not finger like projections, spiny extensions, stereocilia, इस तरह की lining. Again, example wise, exclusive example, only found in a duct called epididymis. क्या कहते हैं? Epididymis of MRS, male protosystem. अब वहां ऐसा एपिथेलियम क्यों है, क्या करता है, we'll go through that explanation later on. बट आज आपको पता चला स्टीरियोसिलेटेड एपिथेलियम इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द एपिडिडायमिस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सेम माइक्रोविलाय मौजूद है. But this time the cell shape is columnar with basal nucleus, and such an epithelium is exclusively present in lining of small intestine. So at a glance you could see, out of those 18 what we have listed the last day, the last week indeed we have gone through a class जहां आपके सामने एक tabulate pattern से मैंने flowchart पूरा बनाया था, where I have listed and nomenclature
भी हमने देखा, बट आज वो दिन आ गया कि हम उसको डायग्रामेटिकली विद सम एक्सक्लूसिव एग्जांपल एक्सपीरियंस कर रहे हैं. राइट नाउ, आफ्टर दैट लिस्टिंग, बिफोर आई मूव अहेड विद द रेस्ट अदर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, और फिर स्ट्रेटिफाइड में भी जो 3 तरह के होते हैं स्क्वायमस, उन पे भी आऊंगा मैं. लेकिन जस्ट टू जस्टिफाई कि अब ये कैसे मौजूद है, एक साथ एक डायग्राम जिसमें सब आ जाएगा, सारे एपिथीलिया, इसमें से करीब करीब 8 में से 5 तरह के एपिथीलियम एक ही डायग्राम में, एक ही बॉडी के स्ट्रक्चर पे. देखिए कैसे कैसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हिस्टोलॉजिकल लेयर चेंज हो जाता है, और रोल ऑफ दैट पार्ट फॉर बॉडी फिजियोलॉजी भी वैसा चेंज हो जाता है. बना लिया सबने? ये इतना पोर्शन मैं रब कर दूं? Now look, suppose if I simply illustrate a system, let us go to the system. टिश्यू को समझने के लिए just let us peep into a system. So that's the presentation of human excretory system by presence of a pair of kidney with ureter, urinary bladder and urethra, where the kidney possesses the presence of a suprarenal gland, that is adrenal gland. लेकिन our aim is to just go through those tissues already being mentioned under the category of epithelium, उससे हमें एक्सपीरियंस करना है. और ये तो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम, बॉडी के 12 सिस्टम में से एक सिस्टम को मैंने इलस्ट्रेट किया है. तो जस्ट आई टेक ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम ओवर हियर. मैं इसका प्राइम ऑर्गन सो कॉल्ड, जैसे किडनी को बाहर निकालता हूँ एक्सक्लूडिंग ऑल अदर स्ट्रक्चर्स. ठीक है, and we supposed to make a longitudinal section. एक longitudinal section बनाते हैं इसका ऐसा LS. So what it will reveal? Definitely inside that structure there is a characteristic presentation of तो आने वाले दिनों में इसके डिटेल्स देखना. लेकिन मैं स्ट्रेट अपने टॉपिक पे पहुंच रहा हूं कि ये जो ऑर्गन हिस्टोलॉजी रिवील हो रहा है, दैट इज रिवीलिंग द आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर medullary region. ये जो कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट है, इट इज बाय वर्च्यू ऑफ प्रेजेंस. ईच किडनी पोजेस दोस फंक्शनल स्ट्रक्चर्स अराउंड अ मिलियन नेफ्रॉन्स. उनके अरेंजमेंट से ऐसा डिफरेंस बनता है जो भी है. दैट इज अराउंड 10 लाख. तो 10 लाख नेफ्रॉन अपने आप को ऐसा क्या खास अरेंज करते हैं, तब जाके ये अंदर ऐसा अपीयरेंस आता है. रेस्ट यहाँ कैलिक्सिस डक्ट सिस्टम होते हैं, और फाइनली लीडिंग दोज प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिन अप टू द स्टोरेज ऑर्गन, एंड दैट्स द फिजियोलॉजी. लेकिन किडनी के अंदर ऐसा क्या हिस्टोलॉजी है जो उस फिजियोलॉजिकल बेंच एक्टिविटी, जिसे बेंचमार्क कहते हैं बॉडी का, दैट इज एलिमिनेटिंग द अनवांटेड, है ना, ओवर प्रोडक्ट कॉल्ड वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, एक सही समय पे 24 घंटे के इंटरमिटेंट टाइम में समय समय पे वो फिल्टर करके जो निकालता है, विच इज अ फिजिकल केमिकल एक्टिविटी, है ना, ऑल ओवर कॉल्ड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी. लेट अस पीप इनटू द डायग्राम. तो
मैं यहां कहीं एक ऐसा कट, ऐसा पंच करके कट करता हूं और तब हम हाईलाइट करें क्या है अरेंजमेंट, वो व्हाट इज नेफ्रॉन, मतलब यहां अंदर झांकने पे हमें वो नेफ्रॉन दिखेगा। अब क्लियर? मैं थोड़ा यहाँ आगे मूव करके बना रहा हूँ टू ऑक्यूपाई सम गुड स्पेस। Right. Now that is the characteristic structure nephron present in a number of around 10 lakh microscopic structure. But एक को हमने हाईलाइट किया तो यहाँ कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है विथ आर्बिट्री लाइनिंग. This arbitrary lining shows the difference between medulla and cortex. ये रहा cortex का lower part और medulla का upper part, lower down the gradient. ठीक है, कुछ इस तरह से अरेंज है. मतलब मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ अ फंक्शनल नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एंड द वन ऑफ द प्राइम स्ट्रक्चर दैट इज लूप ऑफ is characterized in the middle and the more deep it is present. Now that's the histology. यही तो, ये जो बताया जा रहा है यही तो हिस्टोलॉजी है. और इसके वजह से जो अरेंजमेंट और फैसिलिटी एट्रीब्यूट्स वॉट एवर यू कुड से लिस्ट आउट कैरेक्टर जो मिलता है, जो जो फीचर्स मिलते हैं, उस फीचर का इस्तेमाल करते हुए सही मायने में the kidney truly plays the role of excretory as well as osmoregulatory organ. Excretory as well as. तो मेरा कहने का मतलब है सडनली व्हाई आई मूव्ड फ्रॉम हिस्टोलॉजी टुवर्ड्स द ऑर्गन हिस्टोलॉजी. प्लेन हिस्टोलॉजी पढ़ रहे थे, अभी अभी हमने 18 एपिथेलियम की लिस्टिंग में से 8 को एक्सपीरियंस किया विद सम पोटेंट एग्जांपल्स. अचानक मैं वहां से यहां पर क्यों आ गया? जस्ट टू मेक यू एक्सपीरियंस कि अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो फॉर्मेट्स डे 1 आपको जब मैंने लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिकली बताया था कि ईच एंड एवरी टॉपिक उसमें जो क्वेश्चंस ओरिएंटेशन रहता है वो कैसा रहता है. नाउ सी Bowman's capsule. This is renal corpuscle. This is renal corpuscle. Rest is the renal tubule. The nephron is made up of two parts, renal corpuscle and renal tubule. The corpuscle itself is characteristically made up of Bowman's capsule and glomerulus. Bowman's capsule and है ना, ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. दिस इज ग्लोमेरुलस. Now point to be noted, first of all the Bowman's capsule, इसका नाम काफी बार आया है.
अभी अभी जिस एपिथेलियम में पढ़ा, इट इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स, इनर विसरल लेयर, आउटर पैराइटल. इनर विसरल, आउटर. द इनर विसरल लेयर इज मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स, यानी स्क्वामस, यानी ऐसे फ्लैट सेल्स हैं, सिंगल लेयर, सिंपल एपिथेलिया, सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया. आ रहा है सबको समझ में? बट they have undergone some modification क्योंकि renal corpuscle is equal to site of ultra filtration. So ultrafiltration is a physical process. So what is that histological property of nephron, especially in the renal corpuscle part? Renal corpuscle part. आ रही मेरी बात समझ में? Renal corpuscle part. और रीनल कॉर्पसल पार्ट में अल्टीमेटली हिस्टोलॉजिकली वो कौन सा लेयर है? दैट इज द विसरल लेयर मेड अप ऑफ, दिस इज द पोडोसाइट लेयर. विच लेयर? रेस्ट पोडोसाइट पे आ रहे हैं. फिर ये जो बाहर का लेयर है parietal, it is internally lined by simple cuboidal, simple ciliated, simple cuboidal ciliated. आज घर पे जाके अब आपको टैली करना है कि जो पढ़ाया उसको एक बार रिवीजन है. डायग्रामेटिक क्वेश्चंस, लेबल्ड अनलेबल्ड पैटर्न फ्रॉम द टॉपिक हिस्टोलॉजी. एक होता है जो मेमोरी बेस्ड आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, ऐसे ऐसे एपिथेलियम में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और बॉडी में कैरेक्टरिस्टिकली फलाना, मतलब विदाउट एनी प्रायर इमेजिनेशन, उससे आगे सोच ही नहीं रहे, बस पढ़े जा रहे हैं बैठ के, ऐसा होगा होगा. एक तरीका ये है पढ़ने का. और एक होता है एक्चुअल पढ़ते पढ़ते खुद को इलस्ट्रेट करना आ गया कि कहाँ क्यों कैसे है और क्या एक्चुअली होने वाला है उससे. तो दिस इज व्हाट वी कॉल ब्लेंडिंग ऑफ द टॉपिक. हिस्टोलॉजी पढ़ रहे, फिजियोलॉजी आना चाहिए, फिजियोलॉजी पढ़ते पढ़ते पूरी हिस्टोलॉजी याद आ जाना चाहिए एरिया वाइज कि कहाँ कौन सा एपिथेलियम है. दैट्स द ड्वेल रोल एंड द बेटर वे टू मैनेज द टाइम और फटाफट रिवीजन, इसी को कहते हैं. तो मैंने अभी जितने भी एग्जांपल, व्हाई आई हैव टेकन द डायग्राम फ्रॉम द सिस्टम, एक्सक्रीटरी, किडनी, किडनी में अंदर झाका, और हिस ऑर्गन लेवल पे मेडुला कॉर्टेक्स, दोनों एरिया को शेयर करता हुआ किडनी का वाइटल फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन, जिसका नाम बार बार आया है अभी तक के 8 एपिथेलियम पढ़ते हुए. एम आई राइट और नॉट? और वो 8 एपिथेलियम में से जितने भी एपिथेलियम में कैरेक्टरिस्टिकली पाए जा रहे हैं, यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट एक्सक्लूसिव प्रेजेंस. देख ही रहे हैं आप सामने. तो आप देख सकते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए कोई तो लेयर होगा जो छन्नी जैसा, एक फिल्टर जैसा काम करे. फिल्टरिंग मेम्ब्रेन. कौन सा मेम्ब्रेन? तो पोडोसाइट लेयर इज द फिल्टरिंग मेम्ब्रेन. और पोडोसाइट लेयर खुद किससे बना है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया विथ अ लिटिल मॉडिफिकेशन. व्हाट इज दैट मॉडिफिकेशन? आप देख सकते हैं कि मैंने इनके बीच स्पेस बनाया, जबकि याद करिए कैरेक्टरिस्टिक. अब आ रही मेरी बात समझ में? जो लिखवाया था वो सही है, दैट्स ट्रुथ, but exceptions are there, what we call modification, to actually participate in some physiological role. And what is the physiological role over here? Just to act as a gateway, एक दरवाजे की तरह जहां से अलाउ हो सके सिलेक्टिवली चीजें, कौन पास होगा और नहीं होगा. दैट्स द व्हाट एक्शन कॉल फिल्ट्रेशन. उसी को क्या कहते हैं. और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एपिथेलियम ने, देखिए आप देख सकते हैं क्या थोड़ा स्पेस दिखाया है. तो पॉइंट टू बी नोटेड, जरा सा हाईलाइट करें इस एरिया को, इस एरिया को हाईलाइट करें. टॉप व्यू, ये तो साइड व्यू है, ऐसा देख रहे हैं. अगर इसी को आप ऊपर से देखेंगे तो यहां का एरिया कैसा दिखेगा? सो कॉल्ड जो सेल्स हैं, है तो वो फ्लैट सेल्स, लेकिन गौर करिएगा
द फ्लैट सेल्स है फ्लैट और अभी भी टाइटली अटैच है तो टाइटली अटैच, लेकिन यू कुड सी कि इन्होंने ऐसे फुट बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? हेंस कॉल्ड फुट सेल्स। ऐसे बना लेने के बाद दो जक्स्टापोजिशन सेल्स अपने आप को आप समझ गए होंगे, स्क्वायर या कैसी भी शेप से उन्होंने ऐसा शेप बना लिया जिससे जब अब आप आपस में चिपक अटैच करेंगे तो बीच में क्या बनेगा? स्लिट पोर्स। क्या बनेंगे? ये देखिए ना, पोर्स बन गए। दीज आर स्लिट पोर्स और इनकी मौजूदगी से ये मेम्ब्रेन है ना, यही रहे वो स्लिट पोर्स। सबको आ रहा है समझ में? सीधी हिस्टोलॉजी। तो फ्लैट सेल्स भी हैं। दीज आर पोडोसाइट सेल्स, या तो फुट सेल्स कहते हैं या फिर पोडो मतलब पोर बियरिंग, पोर बियरिंग सेल्स। और उनका लेयर जो हिस्टोलॉजिकली बना है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया इन द बाउमैन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन, है ना, हिस्टोलॉजिकली पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग अल्ट्रा फिल्टर मेम्ब्रेन ऑफ बाउमैन कैप्सूल टू परफॉर्म द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कॉल्ड। अच्छा, अब ब्लड जितने भी प्रेशर सेंड करेगा यहां जो भी वो एक नेट प्रेशर क्रिएट होगा, ये दैट्स ऑल एस्पेक्ट, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? आफ्टर सर्टेन टाइम ब्लड फिल्टर होके जो लिक्विड कलेक्ट होगा यहां जीएफ, क्या कहते हैं उसे? ग्लोमेरुलर, दैट नीड टू बी प्रोपेल्ड डाउन। उसको समय समय पे धक्का मार के पुश कर देना टुवर्ड्स पीसीटी। कौन सा रीजन? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड दिस एरिया इज रादर नोन फॉर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्यों? क्योंकि जो भी ब्लड में था वो तो छन गया, छनने के बाद फिर गुजरते समय उसमें से रुक रुक कर चूज करके सिलेक्ट करके वापस जरूरत की चीजों को रोक लेना और बाकी चीजों को जाने देना। दैट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, इज परफॉर्म्ड बाय, यानी रीएब्जॉर्प्शन के लिए अब यहां का एरिया में अंदर ही अंदर क्या हो गए? लाइनिंग। व्हाट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक लाइनिंग? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। विच एपिथेलियम? सिंपल क्यूबॉइडल brush border epithelium. Now as it moves through that process, फिर down the gradient Henle's loop में एंटर करता है। कहां एंटर करता है? Henle's loop में ये रहा डिसेंडिंग लिम्ब, ये रहा डिसेंडिंग लिम्ब। यहां पर भी कैसे होते हैं? फ्लैट सेल्स। कौन से सेल्स? फ्लैट सेल्स। एनसीईआरटी में थिन थिक लिखा हुआ है, आगे चल के भाई उस दिन जस्टिफाई होगा, मतलब उस दिन मुझे इतना समय बिताना नहीं पड़ेगा, फटाफट हम आगे की एक्टिविटी समझेंगे, क्योंकि हिस्टोलॉजी क्या है क्यों है वो तो पहले ही क्लियर है, क्योंकि आज एग्जांपल वाइज देख लिया, समझ लिया और डायग्राम से समझ लिया, जो जितनी भी क्वेश्चन वैरायटी बन सकते हैं वो यही कवर हो रहा है। अच्छा, फिर उसी तरह से यहां पर क्या होगा? ये एसेंडिंग लिम्ब में क्यूबॉइडल सेल्स। कौन से सेल्स? सिंपल क्यूबॉइडल। वैसे यहां पर भी क्या होंगे? सिंपल क्यूबॉइडल, क्योंकि इट्स द साइट ऑफ सिक्रीशन, साइट ऑफ सिक्रीशन। वैसे ये है कलेक्टिंग डक्ट, क्या है? सिंपल कॉलमनार। मैंने कहा था ना आपको तो सिर्फ स्टमक लिखवाया था, और भी एग्जांपल्स हैं। सिंपल कॉलमनार दोनों तरफ।
So among those 8 general covering epithelia on the basis of function, layer and shape of cells, उनमें से आपके सामने सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड 2, सिंपल क्यूबॉइडल 3, है ना, सिंपल कॉलमनार 4, 8 में से 4 के एग्जांपल्स तो इसी में आ गए, क्योंकि ये तो रिपीटेशन है सिंपल स्क्वामस जो यहाँ आया है। सबको आ रही मेरी बात समझ में? इस डायग्राम की इलस्ट्रेशन से समझ गए कि हिस्टोलॉजी पहले पढ़ना इसलिए जरूरी है जिससे आगे का प्लेटफॉर्म, एक बेस तैयार हो फिजियोलॉजी को समझने के लिए। और एक समय आता है टॉपिक ब्लेंड होना चालू हो जाते हैं, फिर वी डू नॉट रिमेन रिलेक्टेंट टू अ टॉपिक, रेफरेंस ले लेके टच देके सब कवर किया जाता है। सबको आ रही बात समझ में अच्छे से? एवरीवन, है ना? सो दैट वाज द इलस्ट्रेशन ऑफ द एग्जांपल थ्रू द डायग्राम। सबको ये समझ में आ गया व्हाट इज दिस प्रेजेंटेशन? The next and last illustration,
Now, to continue with, this is the part of digestive system where we have taken two prominent structures, stomach followed by small intestine. Now it's being a hollow structure, अंदर कहीं ना कहीं एक hollow structure होगा. The lumen continues, esophagus opens into the stomach. Suppose स्टमक में हम एक ऐसा कट लगाते हैं, द स्टमक वॉल. ठीक है, स्टमक वॉल ऐसा बाहर निकलेगा. तो जैसे ही आप मार्केट में जाते हैं और ठीक है ना कि जरा खरबूजा दिखाइए और तरबूज को कटवा के ऐसे बाहर निकालते हैं, अरे यस और नो. सो द इनर सरफेस गेट एक्सपोज्ड और बाहर का ग्रीन पार्ट नीचे आ जाएगा, यस और नो. आर यू गेटिंग दैट अपीयरेंस? इमेजिन कर पा रहे हैं? तो ठीक ऐसा ही है, इसको बाहर ऐसे निकाला तो सो कॉल्ड जो लेयर है, सो दिस इज दैट स्टमक वॉल. और जैसा कि मैंने शुरू से कहा था, द होल एलिमेंट्री कैनाल, चाहे मैं यहाँ का क्रॉस सेक्शन देखूं चाहे यहाँ का क्रॉस सेक्शन, थ्रू आउट बकल कैविटी से लेके एनस तक कहीं भी हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे, द कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है. तो ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट सक्सेसिवली वो 4 लेयर्स के बने हैं. कितने लेयर्स के बने हैं? 4 लेयर्स फ्रॉम आउटर टू इनर. तो इनर सरफेस ऐसे थोड़े थोड़े दूर पे ऐसे डॉटेड अपीयरेंस, स्मूथ सरफेस और ऐसे डॉट्स. दीज डॉट्स आर एक्चुअली गैस्ट्रिक पिट्स. क्या है ये? वो क्या है, क्यों है, वो अभी कंसर्न नहीं है मुझे. तो इस हिस्टोलॉजिकल लेयर से मतलब है. और इसको जब हम जरा नजदीक से एलॉबरेट करते हैं तो जैसा कि एग्जाम्पल लिखवाया गया है कि लाइनिंग ऑफ स्टमक म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग जो है स्टमक का, वहां पाया जाता है सिंपल कॉलमनार एपिथेलिया. कौन सा एपिथेलिया? ऐसा. ये रहा सेरोसा लेयर, ये रहा मस्कुलर. स्टमक वॉल में सबसे थिकेस्ट लेयर होता है मस्कुलरिस. कौन सा लेयर? क्योंकि 3 लेयर्स उसमें भी होते हैं. कितने लेयर्स होते हैं? 3. CMF, LMF, OMF, ऑब्लिक मसल. ये एक्स्ट्रा लेयर होता है जिसकी वजह से. और क्यों ना हो, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है स्टमक रीजन में, सबसे ताकतवर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तेजी से वहीं लाया जाता है और उसको कहते हैं चर्निंग मूवमेंट. क्या कहते हैं? तो वो तो जिस दिन हम मस्कुलर सिस्टम मसल्स के बारे में, अनस्ट्रेटेड मसल्स है सब, क्या है? स्मूथ मसल्स, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग है. यहाँ स्ट्रेटेड मसल्स तो होंगे नहीं, विदाउट आवर विल. उसके बाद जो लेयर होता है सब म्यूकोसा. कौन सा लेयर है ये? सब म्यूकोसा. और ये पूरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू किसका बना होता है? लेकिन अभी हम कनेक्टिव टिश्यू थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो क्या पढ़ रहे हैं? एपिथेलियम टिश्यू. एन ऑर्गन. याद करिए द डे 1 जब मैंने प्रेजेंटेशन, सिस्टम, एन नंबर ऑफ सिस्टम. एक ऑर्गेनिज्म के शरीर में एन नंबर ऑफ सिस्टम, किसी भी एक सिस्टम में एन नंबर ऑफ ऑर्गन्स, 1 2 3 4 5 जितने भी हो. ईच ऑर्गन इज मेड अप ऑफ 4 टिश्यूज. हाउ मेनी टिश्यूज? मोर देन अ टिश्यू, 4 टिश्यूज. किसी भी ऑर्गन में चले जाइए आपको चारों टिश्यूज मिलेंगे. कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो एक्सपोज्ड है एपिथेलियम. और बच्चा नर्वस तो इसके अंदर नर्व फाइबर्स भी सप्लाई होंगे, because it is under this organ is under the control of rest of the organs और सब मास्टर सिस्टम के कंट्रोल में. तो कहने का मतलब है this is the characteristic of animal kingdom. Now this is the characteristic of animal kingdom. Animal kingdom का कोई भी मेंबर, उसका शरीर का जो संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसा है जो शुरू ही होता है किस लेवल से? टिश्यू लेवल से. कहां से? It doesn't from organism of animal kingdom as a member begin their body organization from tissue level. क्योंकि जो सेल लेवल है, सेलुलर, मल्टी सेलुलर, पॉरीफेरा,
और उससे एक बाहर कौन नॉकआउट हो जाता है? प्रोटोजोआ। वो तो एनिमल किंगडम का मेंबर है ही नहीं। ऑरिफेरा मल्टी सेलुलर है, इसलिए एनिमल्स है, एनिमल लाइक, वो भी शुरुआती प्रिमिटिव फॉर्म। लेकिन ठीक है, जहां से टिश्यू लेवल चालू हुआ ट्रू एनिमल्स, और हम जिसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं वो तो सबसे हाईली डेवलप्ड मेंबर ह्यूमन बॉडी, प्राइमेटा, मैमेलिया, उसके शरीर के सिस्टम को पढ़ रहे हैं। तो ये रहा म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या है ये? जो कि खुद 2 लेयर्स के बने होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन पूरा खुद 2 लेयर्स के बने होते हैं। उसके नीचे, अच्छा गौर करिए मैंने क्या लिखवाया था एपिथेलियम टिश्यू की। हर एपिथेलियम टिश्यू के नीचे क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। और कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? लूज। तो म्यूकस मेम्ब्रेन खुद जो 2 लेयर के बने हैं। अब देखिए यहां मैं डॉटेड स्ट्रक्चर की डेंसिटी थोड़ा बढ़ा दे रहा हूं जस्ट टू शो द डिफरेंस। ये लेमिना लेयर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? लेमिना प्रोपाया। क्या कहते हैं? ये टर्म्स याद रखना है आपको। लेमिना प्रोप्राया इज दी कनेक्टिव टिश्यू। मतलब आज के बाद जब कनेक्टिव टिश्यू सॉफ्ट कैटेगरी पढ़ाएंगे वहां यही लिखवाएंगे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जिसे कहते हैं, इट इज प्रेजेंट इन ऑल द डिफरेंट ऑर्गन्स इन देयर वॉल एज लेमिना प्रोपाया, एज जस्ट टू सपोर्ट द एपिथेलियम, जस्ट टू सपोर्ट द एपिथेलियम। तो ये रहा वो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर, लेमिना प्रोपाया। और फिर उसके ऊपर उस कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स क्या करेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सबको याद आ रहा है कुछ? बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन खुद 2 लेयर का बना है, लेमिना और रेटिकुलरिस। ये रेटिकुलरिस इसने बना दिया, ठीक है, और ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। अब देखिए आप मैं क्या कर रहा हूं, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर क्या मौजूद होगा? सिंगल लेयर ऑफ सिंपल कॉलमनार, सिंगल लेयर ऑफ सिंपल कॉलमनार एपिथेलिया। यानी जिस एग्जाम्पल वाइज मैंने एक लाइन लिखवाया था, सिंपल कॉलमनार एपिथेलिया फाउंड इन एग्जाम्पल स्टमक लाइनिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। अब डायग्राम से आप देखिए, उसकी अपनी एक एक्सप्लोरिंग बातें हैं। सामने एग्जैक्ट डायग्राम बना हुआ है आपका। स्टमक के लाइनिंग्स का सबसे इनर मोस्ट, और ये पिट्स क्यों बनते? हो गया सिंपल कॉलमनार। अब थोड़े थोड़े दूर पे यही कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है, क्या करते हैं? फोल्ड हो जाते हैं अंदर अंदर, अंदर ही अंदर फोल्ड हो जाते हैं। फोल्ड होके कहां तक जाके धस जाते हैं? एम्बेडेड कहां तक हो जाते हैं? सब म्यूकोसा तक, और बनाते हैं these are gastric glands। कौन से glands? all glands of the body are formed by epithelium tissue। which epithelium tissue? simple cuboidal। simple, वो तो स्टमक एपिथेलियम सिंपल कॉलमनार है, जो अंदर जाके फिर यहाँ के सेल्स का शेप क्यूबॉइडल हो जाएगा अंदर जाके। कैसा हो जाएगा? लेकिन हाँ, यहाँ सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम बन तो एपिथेलियम से रहा ना। तो ऐसे एपिथेलियम जो बॉडी में मॉडिफाई होके ग्लैंड्स बनाए, क्या बना दे? दे आर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और अभी तक उस पर हमने बात नहीं की। लास्ट डे व्हेन आई हैव क्रिएटेड दैट कंप्लीट फ्लो चार्ट, उसमें मैंने 18 एपिथेलियम जिसमें से 17 को एट अ स्ट्रेच मेंशन किया, कनेक्टेड टू ईच अदर, और मैंने कहा था ग्लैंडुलर एपिथेलियम अलग से डिस्कस करेंगे। वी विल रीच टुमारो ऑन दैट टॉपिक। लेकिन आज ही आपको एक प्रायर इलस्ट्रेशन, एक दिमाग में बेसिक इमेजिनेशन कि देखो कैसे चीजें इंटरकनेक्टेड है। और अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसा लिखवा दिया गया है तो वो गलत नहीं है। एक ऐसा ऑर्गन लिया जिसमें वो सारी मल्टीफेसेटेड बातें एपिथेलियम से जुड़ी हुई एक साथ सामने आ रहा है। हम पढ़ तो टिश्यू ही रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं?
tissue. Yes, all epithelium tissue covering, basic function covering. कवरिंग के अलावा क्या, कवरिंग के अलावा ये क्या कर रहा है? तो ग्लैंड्स बनाया फोल्ड करके, क्योंकि एपिथेलियम टिश्यू से ग्लैंड्स बनते हैं. फिलहाल स्टमक रीजन में सिंपल कॉलमनार एपिथेलिया थोड़े थोड़े दूर पे. तो अब आप समझ सकते हैं, मैं रेड कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं. ये रहा इसका पिट्स ओपनिंग, जहां ये ऐसे कट्स दिखेंगे. तो ऐसे तो अंदर अंदर थोड़े थोड़े दूर पे ऐसे मौजूद है. तो उनको अब आया समझ में सबको? एवरीवन व्हाट दे आर. और समय समय पे एज पर द नीड ऑफ द फिजियोलॉजी, व्हेनेवर अ पर्सन हैपेंस टू टेक हिज और हर मील, अपना खाना समय से लिया, वो तयशुदा समय से जैसे स्टमक में पहुंचेगा, स्टमक विल गो थ्रू इवेंट ऑफ चेंज. उसको चर्निंग मूवमेंट मिलेगा, स्क्वीजिंग, है ना. स्टमक क्या करना शुरू करेगा? स्क्वीज, ऐसा दबाव बनना शुरू होगा जिससे इनकमिंग फूड मिक्सअप हो सके. इसके साथ द सिक्रीशन ऑफ स्टमक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड. सबको मेरी बात आ रही है समझ में? लेकिन सिंस इट इज एसिडिक और उसमें मौजूद एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम से वो अंडरलाइंग सेल्स, जब वो टफ से टफ प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, और उसी प्रोटीन से तो हमारे अंडरलाइंग सेल्स ये सब वो क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाते? तो इसको म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों नाम देते हैं? क्योंकि इनमें से ही, मैं ग्लैंड्स में बताऊंगा आप लोग को, गॉबलेट सेल्स, कौन से सेल्स, थोड़े थोड़े दूर पे इन्हीं कॉलमनार सेल में से कुछ कुछ सेल्स गॉबलेट सेल्स बन जाते हैं, एंड दे कंटिन्यूअसली रिलीज म्यूकस. क्या रिलीज करते हैं? एक म्यूस्लिजिनस, चिपचिपा सा, है ना, ग्लिसरी जैसा प्रोडक्ट, है ना. अक्सर घर में किचन में देखा होगा कि द मोमेंट, है ना, भिंडी घर में कटती है तो एक लस्सेदार प्रोडक्ट उसमें से निकलता है. ठीक वैसा एक म्यूस्लिजिनस सिक्रीशन करते हुए टॉप कवरिंग प्रोटेक्टिव बना के रखते हैं. इसलिए थ्रू आउट, सिर्फ यही नहीं, पूरे एलिमेंट्री कैनाल के द इनर मोस्ट मेम्ब्रेन आउट ऑफ द फोर इज कॉल्ड. सबको आ रही है मेरी बात समझ में? तो आपको इस पूरे एक्सप्लेनेशन में महसूस करना है आज से ही कि कौन सा चीज कहां और कैसे पढ़ा जाता है, जिससे कोरिलेट होके आगे सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ जाती है. एक तरह से देखा जाए तो मैं तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल तक पहुंच गया. हालांकि एक दिन अलग से ये सब पढ़ाया जाएगा, लेकिन उस दिन जब पढ़ा रहे होंगे तब आप आगे की बातें और प्लान, क्योंकि पहले से ही आपको बेसिक हिस्टोलॉजी क्लियर है. क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यूज. किसी भी एनिमल शरीर के बॉडी जैसा भी हो, उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंगली सबको कुछ बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, शरीर को बनावट, रूपरेखा कहते हैं ना, एक मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी दिया गया है, और वो उसी वातावरण, एनवायरमेंट में उसको हेल्प करेगा. फिलहाल हमारा रेफरेंस टाइप स्टडी स्पेसिमेन बॉडी कोई और नहीं है, खुद हम, हमारा शरीर, ह्यूमन बॉडी. किसी को कोई डाउट यहां तक क्लियर? बिल्कुल, है ना, है ना. किसी भी एक रीजन से मैं suppose if I make a cut, so this is the intestinal wall, small intestinal wall, again successively made up of 4 layers from outer to inner. लेकिन यहां आके हिस्टोलॉजी बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक वे में चेंज हो जाती है. यहां का म्यूकस मेम्ब्रेन कैसा है? स्मूथ, फ्लैट, हल्का फुल्का. जब स्टमक एम्प्टी हो तो ऐसा श्रंकन रहता है, सिकुड़ जाता है. तो थोड़ा बहुत सरफेस पे सलवटे, मतलब फोल्डिंग्स आ सकते हैं. दोज आर टेम्पररी, नॉट परमानेंट, क्योंकि स्टमक एम्प्टी है. उन फोल्डिंग्स को कहते हैं, मतलब वो जो फोल्डिंग्स हैं वो हल्के फुल्के ऐसे पड़ सकते हैं. गैस्ट्रिक रियूग कहते हैं उन्हें. क्या कहते हैं? दे आर नॉट परमानेंट. वो तो स्टमक एम्प्टी है, ठीक है, तो श्रंकन रहता है, इसलिए अंदर तक उसका असर पड़ता है चीजें. लेकिन जैसे जैसे फिलअप होगा, स्ट्रेच होकर फ्लैट, स्मूथ. म्यूकोसा मेम्ब्रेन इज स्मूथ, मेड अप ऑफ सिंपल कॉलमनार, मेड अप ऑफ, है ना, एंड होल्डिंग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. लेकिन द केस इज नॉट सेम. जस्ट उसके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन की पूरी लंबाई में अंदर वही म्यूकस मेम्ब्रेन चेंज हो जाता है और फोल्डिंग्स परमानेंटली बनाता है. क्या बनाता है? एंड दैट परमानेंट फोल्डिंग्स अलॉट इट, उसको अलाउ करता है, लायक बनाता है, मेड इट कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म कंप्लीट डाइजेशन फॉलोड बाय एब्जॉर्प्शन. ये जो फिजियोलॉजी है, ये जो इतनी बड़ी बात हमने बोल दी है उसके बारे में, हाउ इट्स पॉसिबल.
thanks to the special histology the small intestine happens to experience. क्या है वो? Let us experience it. सबसे पहले तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका ये जो लूप, ये जो फंदा ऐसे करके पूरा रहता है ना? यहाँ इतने सारे 28 फीट लंबा का, उसमें से 20 फीट तो यही है। तो 18 फीट मिनिमम जो लूप है, ये लगातार इस अपर लोअर एब्डोमेन एरिया को जो ऑक्यूपाई करके रहता है। हम दिन भर उछलते कूदते चढ़ते इधर उधर, बॉडी एक्सपीरियंसेस लॉट ऑफ मैकेनिकल शॉक्स, और इवन आप कभी मूड में आ जाते तो परफॉर्म हिलेरियस डांस परफॉर्मेंस, इधर उधर नाचते, फिर कभी कभी गुस्से में लड़ भी लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो वेरी मोमेंट, इस समय जो शरीर लगातार जो शॉक्स है ना, झटके, जर्क्स बियर करता है। बट ऐसा थोड़ी है कि जाइंट व्हील में चढ़े, किसी फेट मेला लगा है और फ्रेंड्स के साथ चढ़े, है ना, ऐसे कूदे कूदे आया या फिर नीचे उतर के बोले चल खाना, रुक रुक, स्टमक नीचे आ जान दे, ये इधर आ गया है, हार्ट नीचे चला गया है, जरा ठीक कर ले। अरे कुछ इमेजिन करो, सब है ना, बॉडी कैविटी, सिलोम, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट? एवरी ऑर्गन इज ऑक्यूपाइंग इट्स एनाटॉमिक स्पेस, और वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। हाँ, उसको झटके मिलते रहते हैं, बट स्टिल इट रिमेन कांस्टेंट बाय अवॉइडिंग एंड एब्जॉर्बिंग दो शॉक्स। हाउ इट्स पॉसिबल? और सबसे पहली बात है, ये अपने इस फंदे को कैसे बनाए रखता है? ये अलग क्यों नहीं आता, लटक क्यों नहीं जाता? थैंक्स टू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेनस अटैचमेंट्स, जो इन लूप्स के बीच होते हैं। हर जगह होते हैं, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ जो ये ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, इस मेम्ब्रेनस अटैचमेंट्स को कहते हैं मीजेंट्री। क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है, मैंने एनसीईआरटी लिख दिया, अब मैं प्रूव करूंगा कहाँ कैसे बाद में। आज आपको मैंने एक हाईलाइट किया है इसको बस। तो अब आप देखिए, मैंने यहाँ ब्लैक कलर बनाया, लेकिन एक्चुअली इसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है, मतलब वो मीजेंट्री की। सो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, जो पूरे इंटेस्टाइन को इस तरह से पैक करके जोड़े रखता है, और ये बीच में से काट दिया है क्योंकि ये मेम्ब्रेन फिर किसी दूसरे लूप से जुड़ा है। आ रहा है समझ में? जैसे बीच में से इस लूप को काट के निकालने के लिए मुझे ऐसे ऐसे काटना पड़ेगा ना, ऐसे, तो वो क्या ऐसे कट गया, तो इसके साथ ऐसा चिपका हुआ है मिजेंट्री, और दूर दूर पूरे लूप्स को ऐसे पकड़ बनाए रखता है। ठीक है, तो ये तो आने वाले दिनों में अगर आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा और याद आएगा कि नंदी सर यही बता रहे थे। क्या है, कुछ चीजें होती है ना कि 3D रियल प्रेजेंटेशन, और मैं तो 2D बोर्ड पे लिख रहा हूँ। अरे कुछ आया समझ में? 2 डायमेंशनल प्रेजेंटेशन चल रहा है। तो दिस इज द मीजेंट्री। ये क्या है? एक्चुअल आउटर मोस्ट कवरिंग है मीजेंट्री। फिर शुरू होता है एक्चुअल इंटेस्टाइन, जो ये बना हुआ, मतलब इस, अब आप समझो ना, इसको निकाल दूं तो ये रहा,
right? So this is now serosa. This is muscularis layer, followed by submucosa, followed by submucosa. अब हमें सबसे इनर मोस्ट, अगेन किस लेयर से मतलब है? म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि वही हिस्टोलॉजिकली डिजाइन है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में दो फिजियोलॉजिकल फंक्शन को अंजाम देने के लिए, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. एंड व्हाई इट हैज बीन मेंशन्ड, क्यों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में लिखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट्स इनर मोस्ट लाइनिंग, म्यूकस लाइनिंग इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर. सिंपल कॉलमनार, डिड एवरीवन गॉट द प्रेजेंटेशन? सबको आया समझ में? ऐसा करके कट कर दिया स्लाइस, क्योंकि अब हमें ये है म्यूकस मेम्ब्रेन. ये है क्या? ये रहा थिकनेस, म्यूकस मेम्ब्रेन. लेकिन यहां का म्यूकस मेम्ब्रेन ऐसा अभी जो स्मूथ बना है, ऐसा स्मूथ होता नहीं है. क्यों? क्योंकि पहले देख के थोड़ा समझ लीजिए कैसे क्या बन रहा है, फिर आप बनाइएगा. पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू आउट द लेंथ, पूरे पूरे यहां से लेके शुरू से लेके आखिरी तक, इलियम रीजन तक, थोड़े थोड़े दूर पे ऐसे फोल्डिंग्स हैं. क्या है? ये तो मैंने ऐसे करके कट कर दिया, इसलिए ये ऐसे हिस्टोलॉजिकल कटिंग दिख रही है. मतलब इमेजिन करो ना, ऐसे जैसे कोई पेन है, अंदर थ्रेड्स बने होंगे ना, सरफेस कैसा होगा? थ्रेड थ्रेड बन जाएगा तो रफ नहीं होगा. थोड़े थोड़े दूर पे हर्डल्स, यानी इसको अगर ऐसे में ना करके ऐसे में देखें, ऐसे हॉरिजॉन्टल ना देख के ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में देखे, आ रहा है समझ में? ऐसे करके ये फोल्डिंग चलेगा. सबको आ रही मेरी बात समझ में? इससे क्या होगा? खाना आके रुक जाता है. जैसे पुलिस बैरिकेड्स नहीं लगा देते, बैरिकेड्स रोड पे बैरिकेड्स नहीं लगा देते आगे पीछे करके, गाड़ी जितनी भी स्पीड से आए इट हैज टू स्लो डाउन. क्यों? क्योंकि स्टमक इतने ताकत से चर्निंग मिक्सिंग करके खाने को बड़े ताकत से फेंकता है पाइलोरिक स्फिंक्टर को खोल के, लेकिन यहां आके पेरिस्टाल्सिस बिल्कुल स्लो हो जाता है, क्योंकि खाने को यहां आखिरी रुकना है फॉर कंप्लीट डाइजेशन. एंड क्योंकि वंस इट विल क्रॉस this area, there is no more digestion, only absorption of water and some minerals along with vitamins. Rest is all process of fecal formation, defecation. क्या होगा? Large intestine.
तो खाना मेन कहाँ एंटरटेन हो रहा है? 90% फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। 90%, 95% कहाँ पर? Small intestine as an organ of digestive system must possess some unique histology to hold down the things. तो ये जो है इस तरह से ये फोल्डिंग्स होते हैं, इसको ऐसे छोड़कर यहाँ ये आ रहा है समझ में। दीज आर कॉल्ड प्लीका सर्कुलेयर्स। इन फोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? प्लीका सर्कुलेयर्स, ऐसे फोल्डिंग्स। तो जरा अब इसको हाईलाइट करें। अब आप देखिए मैंने सिर्फ किस लेयर को बाहर निकाला है इसमें से, ये वाला म्यूकोसा मेम्ब्रेन। अब शायद समझ में आ जाए जिसको यहां नहीं समझ में आया हो। अब आया समझ में? बैरिकेड्स बन गए ना ये अंदर। अब आया समझ में, है ना? इस तरह से फोल्डिंग, तो खाना बीच में फंस जाएगा सबसे पहले तो। और सरफेस, ना केवल खाना रोक दिया गया बल्कि सरफेस एरिया बढ़ गया ना। अब आप इमेजिन करो, पहले मैंने स्मूथ दिखाया था, कैसा सरफेस दिखाया था? स्मूथ। सरफेस एरिया भी बढ़ गया और खाना रुक भी गया। फिर अच्छा, इन फोल्डिंग्स को कहते हैं प्लीका सर्कुलेयर्स। अब इनके ऊपर भी ऐसे फिंगर लाइक फोल्डिंग्स पूरे सरफेस पे। ये भी है ना, इन पे ऐसे फिंगर लाइक पूरा, इनके ऊपर। दीज फिंगर लाइक फोल्डिंग्स आर कॉल्ड विलाय, कॉल्ड। अब जरा इनको हाईलाइट किया जाए सिर्फ यहां से, जरा इसको नजदीक से देखा जाए। सबको आ रही बात समझ में? अगर इनको जाके नजदीक से देखेंगे तो वो ऐसे दिखेंगे, है ना? बहुत ही नजदीक से ऐसे ब्रश बॉर्ड, मतलब सॉरी, ऐसे विलायस। दीज आर विलायस। और यहां पर ब्लड वेसल सप्लाई वगैरह सब कुछ मौजूद होगा, लेकिन मेन है लिम्फ वेसल, लैक्टियल। क्या होगा? लैक्टियल। ये रहा लैक्टियल, लिम्फ वेसल। एक एक ऐसे लिम्फ वेसल को क्या कहते हैं? लैक्टियल। एक एक विलाय में एक एक लैक्टियल, और रेस्ट ईच लैक्टियल
is surrounded by blood vessels, is surrounded by blood vessels. दोनों तरह के ब्लड वेसल्स होंगे, आर्टरीज एंड वेन्स. तो सी फ्रॉम वेयर इट हैज स्टार्टेड, ऑर्गन लेवल से चालू हुआ, लेयर आफ्टर लेयर. ये तो कवरिंग लेयर है, ये अटैचिंग लेयर है जो लूप को बनाए रखता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर. फिर ये मूवमेंट्स, क्योंकि इस एरिया में भी हल्का फुल्का खाने को तो धकेलना पड़ता है, मस्कुलरिस लेयर डू दैट. फिर बीच में सब म्यूकोसा, वही डेंस कनेक्टिव, लूज कनेक्टिव का बना हुआ ऑल ओवर, और जस्ट टू सपोर्ट एंड अटैच दी सक्सेसिव लेयर्स. लेकिन फंक्शनल लेयर कौन है? म्यूकोसा मेम्ब्रेन, जो खुद बना है 3 तरह की फोल्डिंग्स. कितनी तरह की फोल्डिंग्स? सबसे पहला फोल्डिंग है प्लिका सर्कुलेयर्स. फिर उन पर मौजूद है बहुत ही फिंगर लाइक, टू इंक्रीज फर्दर मोर, एनहांस कर देना सरफेस एरिया को, दैट इज कॉल्ड विलाय. नाउ ईच वाइलस, ईच एक वाइलस को अगर हम देखें नजदीक से, ये रहा लैक्टियल. तो अब आप समझिए, ये रहा फिर वही लेमिना प्रोपाया, वही कनेक्टिव टिश्यू लेमिना प्रोपाया, जिसके अंदर ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल सप्लाई. ये ब्लड वेसल मैंने बनाया नहीं है. और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा. बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अब देखिए एपिथेलियम लाइनिंग. कौन सी लाइनिंग? बट दिस टाइम द एपिथेलियम लाइनिंग आर सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. Simple columnar, and now these foldings are microvilli. एक सेल को मैं बाहर निकालता हूं, है ना. दीज एब्जॉर्प्टिव सेल्स, देखिए ये रहा माइक्रोविला है. दीज एब्जॉर्प्टिव सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन आर कॉल्ड एंटेरोसाइट्स. एक एक सेल को एंटेरोसाइट्स कहते हैं. एंटेरो वर्ड मतलब ही एब्जॉर्व करना. तो अब आप इमेजिन करिए फिजियोलॉजिकली, जब इंटेस्टाइन से खाना, जो फूड स्लरी घोल है, वो तो मिक्सअप हो चुका था, लिक्विफाई, सारे एंजाइम्स, गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टिनल जूस सबके साथ मिक्स होके खाना सॉलिड तो रहता नहीं, इट वो घोल स्लरी बन चुका होता है. सो दैट सेमी डाइजेस्टेड, कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड स्लरी व्हेन passes through the lining of small intestine. Which lining? Innermost lining. What is the innermost lining? Mucosa membrane layer. और उसका भी सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो एक्चुअली एनकाउंटर कर रहा है खाना, तो इससे ही टकरा के जा रहा है ना. इट इज द एपिथेलियम टू प्रोटेक्ट, टू कवर, ये तो कर ही रहा है, एज वेल एज फिजियोलॉजिकली मॉडिफाई इटसेल्फ टू प्ले रोल इन एब्जॉर्प्शन. व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, हाउ इट इज परफॉर्म, बाय व्हिच मैकेनिज्म, ये तो सब पढ़ेंगे. लेकिन आज दिमाग में एक कॉन्टेक्स्ट में क्लियर हो गया. यस, small intestine is histologically lined up by 3 characteristic foldings: plica circularis, villi, and to increase the surface area of the small intestine around 600 to 800 times. और अगर ये 3 फोल्डिंग नहीं होता, अब आप इमेजिन करो ये सब मिटा के दोबारा वही प्लेन सरफेस जैसा कि ये है. सबको आ रही है मेरी बात समझ में? तो दिस डायग्राम जस्ट सिंपली, मतलब कितनों को नहीं समझ में आया बीच में, मैं थोड़ा बीच में जानना चाहूंगा कि सर ये कुछ नहीं समझ में आया. एनीवन? क्लियर है बिल्कुल, है ना. टॉपिक एंड हो गया, और ऐसा नहीं कि फिर सर व्हाट इज दिस. आ रहा है समझ में बिल्कुल क्लियरली कि हमने कहां से क्या शुरू किया, है ना. और रेस्ट पॉइंट टू बी नोटेड, वो जो ब्लड वेजल्स, ग्रेट ब्लड वेजल्स इस तरह से एंटर करते हैं इन मेसेंट्रीज से, इन मेसेंट्रीज से निकलकर इसके अंदर, इनसे निकल के ऐसे लेयर आफ्टर लेयर ऐसे क्रॉस करते हुए इनको इसके अंदर ऐसे धस जाते हैं इसके अंदर, फिर इससे निकलते हैं,
फिर इससे ऐसे करते करते कहाँ पहुंचते हैं, ओवर हेयर, ओवर हेयर, ऐसे करके यहां तक. So this is vascularization. This is, but epithelium cell is avascularized, but epithelium tissue is, उसके अंडरलाइंग से सेल्स को मिलता रहेगा, बट डायरेक्टली, क्योंकि इसके बाद देर इज नो स्पेस फॉर द कैपिलरीज टू पेनिट्रेट, बिकॉज epithelium tissue is characterized by absence of intercellular spaces या no intercellular spaces. तो वो जो 15 पॉइंट्स कैरिज्मेटिक 15 पॉइंट्स जो लिखवाए हैं, वो थ्रू आउट कोई भी एपिथेलियम किसी भी लेवल पे जाके पढ़ लो, वो 15 बातें मोर और लेस रिवॉल्व करना चाहिए. हो गई तैयारी. दिस इज द नेचर ऑफ histological study, and first tissue which I have dealt till date is epithelium tissue. Among those 18, आपके सामने आज 8 मैंने इलस्ट्रेट कर दिए. सबको मेरी बात आ रही समझ में? बुकलेट जो मिला है उसमें तो इंडिविजुअल लेवल पे एक एक टिश्यू का एक ऐसी फंडामेंटल इलस्ट्रेटिव डायग्राम बना है, 4 पॉइंट्स लिखे, वो तो रट्टाफिकेशन घर में बैठ के करना. बट क्लास में आ रहा है कंसेप्चुअल प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, कैसे पढ़ा जाता है, और उसको जाके फिर कोरिलेट करें आप लिटरेचर जो बुकलेट आपको मिला है. दैट्स द होमवर्क. यही तो मेहनत है जो घर पे जाके करोगे. सबको मेरी बात आ रही है समझ में? क्लास में तो मैं एक्चुअलिटी बता रहा हूँ कि वो क्या है, कैसे एक्चुअली पार्टिसिपेट करता है शरीर के अंदर टू फंडामेंटली accomplish a physiology. किसी को कोई डाउट? क्लियर? हाँ, मोर और लेस सारे ऑर्गन्स में लेमिना, सपोर्टिव लेयर नीचे, उसको लेमिना प्रोपाया कहते हैं, है ना. और जब वो साथ में हो तो ये मेम्ब्रेन वर्ड आता है. क्या वर्ड आता है? मेम्ब्रेन. आगे चल के मैं बताऊंगा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन थ्रू आउट अवर बॉडी, है ना. एक तो हो गया म्यूकोसा मेम्ब्रेन, ऐसे ही एक होता है सेरोसा मेम्ब्रेन, है ना. ऐसे और 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा. फिलहाल जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, इट इज द इनर मोस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और उसमें जो लूज कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियम को सपोर्ट करता हुआ पाया जाता है, लेमिना प्रोपाया. सो दिस इज सिंपली एन इलस्ट्रेशन. मैंने एक्चुअली ये सब कौन कैसे काम करता है, उसके अपने क्या फीचर्स हैं, वो तो सब बताया जाएगा आने वाले दिनों में. आज तो मुझे मेन आपको मेंटली स्टक करना था टू अंडरस्टैंड हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इंटरनली लाइंड बाय सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, है ना, possessing those minute cell level foldings called microvilli. But the folding began right in the beginning. Plica, circulars, villi and microvilli. Together 3 have simply increased over there, है ना. उसने फिजिकली क्या कर दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया तीनों ने मिलके. और सरफेस एरिया का सीधा सीधा संबंध किससे है? तो अब मैं क्या डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूं कि सपोज आपने ये पढ़ लिया, मतलब जितना मैंने बताया, अब इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं. मतलब एक क्वालिटी क्वेश्चन जो खुद फ्रेम अप कर लो. आपको बुकलेट्स, प्रैक्टिस बुकलेट्स हैं और क्वेश्चन उसके साथ में दिए हुए हैं, उनको आप करिए. लेकिन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिससे आपको पूरी तैयारी हो जाए कि हाँ अल्टीमेटली सब याद हो रहा है कि नहीं. एक टेबल बना के रिमार्केबली, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं. टिश्यू टाइप, उसका स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, मतलब कोई एरिया जहां वो पाया जाता होगा. रिमार्क, टैबुलेट पैटर्न क्वेश्चन. कैसा पैटर्न क्वेश्चन? ठीक है ना, हिस्टोलॉजी टॉपिक, टैबुलेट पैटर्न. इतना हमने जितना भी अभी तक पढ़ा, लेट अस फ्रेम अप अ क्वेश्चन, खुद तैयारी करें. टिश्यू टाइप ऑफ डेफिनेटली 4 ऑप्शंस ए बी सी डी, और अभी तक आपने जितने पढ़े उन्हीं से मैं ऑप्शन बना लूं. और जरूरी थोड़ी कि जिस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हो मैंने लिखा है वैसे ही लिखा हो. सिंपली लिखा हो सीलिएटेड एपिथेलियम, और स्ट्रक्चर में बस ऐसे ही बना हुआ है, सीलिया नहीं दिखाया है. ठीक है. एग्जाम्पल में ओविडक्ट लिखा हुआ है.
और प्रोपल्शन। रिमार्क क्या है? प्रोपल्शन। आ रहा है सबको समझ में? रिमार्क भी सही लिखा हुआ है थोड़ी देर के लिए, ऐसा कुछ घटना तो होता तो है, रिमार्केबली होता है रिमार्क अपनी जगह, लेकिन पूरा मैच नहीं कर रहा। अब आप समझ गए हैं कि एक्चुअली मैं आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम अप कर रहा हूं, है ना? फिलहाल ऊपर लिखा होगा द गिवन टैबुलेट पैटर्न शोज द वेरियस टिश्यू टाइप्स इन द गिवन एरिया विद देयर रिमार्क, फाइंड द करेक्ट मैच। या 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे, एक इनकरेक्ट दिया होगा और इनकरेक्ट, या फिर टैबुलेट पैटर्न में और ये 2 पैटर्न हो गए, तीसरा पैटर्न ऐसे ही रहने देते हैं, बस डायग्राम सब बने हैं, इधर x है ना, इधर y कर देते हैं, इधर z कर देते हैं और ऑप्शन बना देंगे x y z। कम चूज एन ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स द टेबल। बाकी तो सब सही सेट में लिखा हुआ है, वो तो फिर एक ऐसा ऑप्शन जिसको इसमें भर देने से पूरा टेबल सही हो जाएगा। अरे सबको आ रहा है समझ में? टैबुलेट पैटर्न, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी के लिए थ्योरी लिखवा ही दिया है, कंटेंट्स है, करेक्ट इनकरेक्ट। या फिर बेसिक हिस्टोलॉजी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो बेसिक हिस्टोलॉजी, डायरेक्ट हिस्टोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ ऐसा क्वेश्चन किसी और चैप्टर में, वही है ना, व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंटेस्टिनल हिस्टोलॉजी। अब कहोगे सर इंटेस्टिनल हिस्टोलॉजी तो पढ़ा नहीं है। अरे इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर डाइजेस्ट सिस्टम, जहां स्मॉल इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी, अब वो जो भी स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, इट हैज गॉट 3 कैरेक्टरिस्टिक फोल्ड्स, बस एक स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है ना, इट्स अ साइट ऑफ डाइजेशन ओनली, गलत लिखा हुआ है। करेक्ट इनकरेक्ट कोडिंग पैटर्न क्वेश्चन कहते हैं इसको, कि 2-3 गलत स्टेटमेंट, एक आपको मतलब कितने सही और कितने गलत स्टेटमेंट। तो ये तो मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आपको इन चीजों का एहसास तो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय ही जज कर लीजिए कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट्स पढ़ रहे हैं, वो इस तरह से टैली हो रहा है कि नहीं, मोर और लेस। 70% तो यही तैयारी हो जाती है, 30% तो बस प्रैक्टिस है, टेस्ट सीरीज है, अप्लाई करते रहना। 70% तैयारी तो यही हो जाता है पढ़ते पढ़ते। सबको आ रहा है समझ में? एंड देन यू कुड मेंटली, अब इसमें और कुछ बात छुपने की रही नहीं है, यू कुड प्रिपेयर योरसेल्फ कि हाँ, सेल्फ असेसमेंट कि हम सही चाह रहे हैं। तो ये आप तो मान के चले, अभी आप कोर्स का सबसे इजीएस्ट टॉपिक इजी वे में मैं डेमोन्स्ट्रेट, जैसे जैसे आगे आगे चैप्टर्स और टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स और क्या होते जाएंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स। लेकिन हमारा सोच का जो एक डायरेक्शन है वो एक जैसा रहना चाहिए, मोर और लेस। तो इतने देर से आज क्लास कैसे चालू हुआ, लास्ट डे, मतलब आज हम 4th डे पे हैं टॉपिक को लेके, कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, रेस्ट टिश्यूज बनाते हुए अभी 2 टिश्यूज और बताऊंगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कल ग्लैंडुलर एपिस 5 क्लास में आपने खत्म किया, आज के बाद ऐसा दोबारा 5 दिन 2-2 घंटे यानी 10 दिन नहीं लगने चाहिए आपको, 15 मिनट्स कितना, द वर्क शुड बी डन इन, आज के बाद एपिथेलियम टिश्यू मीन्स वो 15 पॉइंट्स बिल्कुल सेट है दिमाग में, जनरल अकाउंट या एक जनरल बात, टिश्यू क्या है, कहाँ, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एनिमल बॉडी एट टिश्यू लेवल। The animal should be first of all eumetazoa, it should possess germ layers। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है ना, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये बातें सही है। तो इस तरह से वो फंडामेंटल बातें, 4 टिपिकल टिश्यूज, एपिथेलियम टिश्यू से शुरुआत हुई थी, 15 वो पॉइंट्स जिसको मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर पे उतार डाला था, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन म्यूकोपॉलीसेक्राइड, केमिकली एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड नॉन सेलुलर लेयर, कैसा लेयर, बाकी जिस पर रेस्ट करता है सेलुलर लेयर, मेड अप ऑफ सिंगल और मोर देन वन सिंगल लेयर्स, सिंपल एंड कंपाउंड। अकॉर्डिंगली सेल्स कुड शेयर आइदर ऑफ द 3 शेप्स, आइदर ऑफ द columnar, squamous and cuboidal, and if it's so, all cells have a nature to get juxtaposition, बिल्कुल एक दूसरे के आसपास नजदीक से सटे हुए, by the structures called cell junctions। क्या है सेल जंक्शंस, क्यों कैसे मौजूद है, वो अपने आप में है ना। व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ सेल जंक्शंस इन एपिथेलियम टिश्यू। ये सेल जंक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, और वो जो आखिरी पैराग्राफ लिखा है कि कुछ लोग लीक होने से बचाते हैं, कुछ गैप जंक्शंस की तरह, बस वही ऑल द अबव। आंसर क्या होगा? अरे हो गया एनसीईआरटी बेस्ड, उसके लिए थोड़ी तुम यहाँ पढ़ने आते हो। अरे वो तो इतना तो पढ़ते पढ़ते आइडिया लग ही चुका है कि ऐसा एक बेसिक अप्रोच है एनसीईआरटी पढ़ने का, लेकिन बात जैसी एक्सप्लोर करने की आती है कि वो कहना क्या चाह रहा है, उससे जुड़ी हुई और क्या बातें सामने आ रही हैं। Now that gives an extra bench of preparation to your
कंप्लीट जो आपका ऑल ओवर लुकआउट है ना? सबको आ गया अच्छे से समझ में? एवरीवन, नाउ I will just now move to the next intermediate category, pseudo stratified. किस पर बात करूंगा? और उसके प्रॉपर्टीज पे बात करने से पहले उल्टा, अभी क्या है, पहले प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स लगा के फिर डायग्राम बनाया था, यहाँ पहले डायग्राम बनाऊंगा और फिर देखिएगा उस लेवल पे पहुंचूंगा, और फिर जो डायग्राम सामने आएगा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का, उसकी प्रॉपर्टीज है, फटाफट लिख लें पॉइंट्स कि दीज आर ऑल ट्रू फॉर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। लेकिन वो पाया शरीर के एक ही खास जगह में जाता है, जिसके कारण उसको रेस्पिरेटरी एपिथेलियम क्या कहते हैं, और इस नाम से ही मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके कुछ खास एरियाज जहां की लाइनिंग स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से होता है। तो pseudo stratified epithelia, so human respiratory system, let us make a transverse section cut on the trachea. So definitely ये रहा वो ट्रैकियल वॉल, ठीक है ना, ट्रैकियल वॉल ये रहा, ठीक है, ऐसा कट करके इसको ऐसे रख दिया। अब ये व्यू, तो आउटर टू इनर ये रहा ट्रैकियल वॉल, अगेन लेट अस मेक अ कटिंग लाइक अ केक। इस वॉल को हाईलाइट करें, तो सक्सेसिव लेयर्स रहते हैं मस्कुलरिस, लेकिन एक मेन लेयर होता है कार्टिलेज का, किसका, थोड़े थोड़े दूर पे सी शेप्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्रैकियल रिंग्स मेड अप ऑफ हैलीन कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज, उसको मैंने बीच में ये शो किया है। तो मुझे बाकी लेयर से मतलब नहीं है, मुझे सबसे इनर मोस्ट लेयर जो इस ल्यूमन की तरफ एक्सपोज्ड है, क्योंकि इनकमिंग आउटगोइंग एयर उसी सरफेस से टकरा टकरा के अवेल होता है टू दी वेंटिलेशन चैम्बर ऑल टुगेदर कॉल्ड लंग्स। यहां तक पहुंचते हैं थ्रू द नेटवर्क ऑफ रेस्पिरेटरी, थ्रू द नेटवर्क ऑफ जो अंदर मौजूद है। तो यहां और ब्रोंकाई तक होते हैं, प्राइमरी ब्रोंक्यूल तक थोड़ा बहुत, बस मेन है ट्रैकिया। अब वहां पर ये एपिथेलियम कैसे मौजूद है, ये रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन, अब आप देख सकते हैं मैंने छोटे बड़े सेल्स बनाए हैं, और जो बड़े सेल्स हैं उनमें सीलिया भी मौजूद है। तो क्यों ना इसको जरा और नजदीक से देखें, जस्ट टू लेबल कि लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स, बीच में छोटे सेल्स भी हैं, फिर बड़े सेल्स, फिर छोटे सेल्स, फिर बड़े सेल्स, छोटे सेल्स। और यू कुड सी द न्यूक्लियस अप एंड डाउन दिख रहे हैं, और उसी की वजह से अपीयरेंस आता है हिस्टोलॉजिकली माइक्रोस्कोप में कि एक से ज्यादा सेल्स के, जबकि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सारे सेल्स अपने उनके अटैच है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल। जब सारे सेल्स का बेस किससे चिपका हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन से,
तब वो सिंपल एपिथेलिया होता है। तो है तो वो सिंपल ही, लेकिन ड्यू टू दैट अनइवन अपीयरेंस, छोटे बड़े सेल्स के कारण, बड़े सेल्स कॉलमनार, लंबे सेल्स इलोंगेटेड, और जो छोटे सेल्स हैं उनको बेसल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसल सेल्स। और इनमें से कुछ सेल्स कप शेप्ड कैसे हो जाते हैं? कप शेप्ड। इन कप शेप्ड सेल्स को ही कहते हैं गॉबलेट सेल्स। क्या कहते हैं? बॉडी के 4 सिस्टम में गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्योंकि इन चारों सिस्टम्स में म्यूकस मेम्ब्रेन होना चाहिए। कौन सा मेम्ब्रेन होना चाहिए? और म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर रहकर क्या करता है? इनेट इम्यूनिटी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्योंकि जो चिपचिपा म्यूकस है उसमें बैक्टीरिया एंटर करने जाता है तो दलदल में फंसने जैसा, उसके लिए वो दलदल है ना, फंस जाता है उसमें, इमोबिलाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? नाउ दिस इज इम्यूनिटी, फिजिकल बैरियर। तो बाहर से स्किन और अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन 2 लेयर के बने, एपिडर्मिस डर्मिस, म्यूकस मेम्ब्रेन भी 2 लेयर के बने, एपिथेलियम रेस्टिंग ऑन लेमिना प्रोपाया, रेस्टिंग ऑन। सबको आ रहा है समझ में? और इस तरह से फिजिकल बैरियर शरीर में बाय बर्थ इनेट नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नथिंग स्पेशल, बीइंग मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, हम सब में ये बाय बर्थ मौजूद है, हम शेयर करते हैं। and so called the pathogen whoever never able to encounter, है ना, provided अगर हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन हेल्दी इंटैक्ट है। हाँ, कुछ खराबी हो गई, छाले पड़ गए, अंदर वुंड है, एक्सपोज हो गया, पैथोजन को घुसने का मौका मिल जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी फेल्ड। तब अंदर से लड़ता है सेकेंड लाइन ऑफ इम्यूनिटी। कौन? और वो है ब्लड। वो कौन है? ब्लड। ब्लड भी फेल हो गया, इन्फेक्शन को रोकने से जो है नहीं कर पाया, फेल्ड। we fall ill, we fall, why do we fall ill? क्लास 9th में चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड में, टू डील द चैप्टर ऑफ इम्यूनिटी इंडीड, यस और नो? वी फॉल इल, हम बीमार पड़ चुके होते हैं क्योंकि इन्फेक्शन को रोक नहीं पाए, फैलने से रोक नहीं पाए, रिजल्टेंट वी हैव टू फेल इल। And the system at third line of defense, actual immune system, when retrieve, दोबारा रिबाउंस करते हैं, फाइटिंग दोज इन्फेक्शंस एंड डिजीज कॉजिंग पैथोजन, और रीस्टोर आवर हेल्थ एंड रीस्टोर आवर हेल्थ। दैट्स द थर्ड लाइन ऑफ इम्यूनिटी, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, एक्चुअल इम्यून सिस्टम। एंड एश्योर करता है, प्रोवाइडेड कि नेवर द एपिसोड ऑफ सच डिजीज में अकर इन नियर फ्यूचर। अब वो नियर फ्यूचर किसमें कितना होगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई बीमार पड़ के अगले कई वर्षों तक हेल्दी रहे, कुछ लोग 2 साल बाद फिर बीमार पड़ जाए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या कहते हैं इसे? वो होती है इंडिविजुअल इम्यूनिटी सबकी। लेकिन शुरू के जो डिफेंस की मैंने अभी अभी बात कही है, सबको मेरी बात आ रही समझ में? अभी अभी जो मैंने बात कही है वो है नॉन स्पेसिफिक, हम सब में कॉमनली पाया जाता है बाय बर्थ। ठीक है, फर्स्ट लाइन। एंड फिलहाल जिस टिश्यू को हम पढ़ रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में इस बात को साबित किया गया था, दिस इज द फर्स्ट टिश्यू टू अराइज इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट प्रोवाइड्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एपिथेलियम टिश्यू प्रोवाइड, ऐसी कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाते हुए लिखवाएंगे, इट प्रोवाइड्स सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ, सबको आ रहा है कंसेप्ट समझ में? कैसे? देखिए, बिल्कुल कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते ऐसा लिंक हो जाना चाहिए आगे के लिए। तो कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज नाउ कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब आपको डायग्राम देख के लिखा आना चाहिए, दे पोजेस सीलिया। एनसीईआरटी में ये डायग्राम टॉप कॉर्नर से बना है, कहाँ कैसे बना है ये अब आपका होमवर्क है, जाके ढूंढो, देखो, टैली करो। लेबलिंग नहीं किया हुआ है और ना उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, बस बना हुआ है और नीचे लिखा है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कहाँ क्यों पाया जाता है ये देखिए, अब समझ में आ रहा है? क्योंकि एयर इन एंड आउट होता है, ये डस्ट पार्टिकल को प्रोपेल करता है, म्यूकस जो हमेशा रिलीज होके, म्यूकस, ये म्यूकस है ना, गॉबलेट सेल्स, ये म्यूकस बना के लाइनिंग, क्योंकि मॉइस्ट रेस्पिरेटरी सरफेस कैसा होना चाहिए? मॉइस्ट एंड सपल, वेट। ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम फिजियोलॉजी में बताएंगे। क्योंकि इनकमिंग एयर वार्म, जरूरत से ज्यादा अभी गर्मी थी, लू चल रहा था, ये जरूरत से ज्यादा ठंड के दिनों में, बट बॉडी टेम्परेचर इज व्हाट? कांस्टेंट। वी आर होम्योथर्म्स, वार्म ब्लडेड, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर।
तो कंडीशनिंग का काम करता है ये म्यूकस। किसका काम करता है? ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए इवोपरेट हो जाता है, या फिर अगर ज्यादा गर्म, क्या बोलते हैं, ठंडा हवा है, उसको गर्म करने के लिए नीचे के ब्लड वेसल तेजी से घूमते हैं, जिससे गर्मी निकलती है, और वो मतलब दैट्स द वे एसी, एयर कंडीशनिंग, natural air conditioning throughout the respiratory tree, throughout the, hence the epithelium is called respiratory epithelium, pseudo stratified। सबको आ रही है मेरी बात समझ में? तो सीलिया बियरिंग लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स, बेसल सेल्स छोटे साइज के, एंड गॉबलेट सेल्स, थ्री कैरेक्टरिस्टिक सेल्स। जबकि मैंने नॉर्मल एपिथेलिया पढ़ाते हुए कभी नहीं कहा था कि एक ही एपिथेलिया में तीन तरह के सेल्स होंगे। ऑल सेल्स शुड बी सेम, एक्सेप्शन दिस इज ऑल सेल्स शुड बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। नहीं, स्ट्रक्चर वाइज देखिए तीन तरह के सेल्स। अरे आया समझ में? एंड मोर ओवर अपीयरेंस सीम्स टू बी मोर देन वन लेयर, बट एक्चुअली वन लेयर। वो हिंदी के कहावत है ना, दूर से देखा गंजे उछल रहे थे, पास आके देखा अंडे उबल रहे थे। बायोलॉजी में मतलब स्यूडो वर्ड जो वहां यूज हो गया, मतलब एक्चुअली जो है वो नहीं दिख रहा है, और जो नहीं है वो दिख रहा है। अरे यस और नो? क्लियर? तो आज मेरा लेक्चर यहाँ एंड होता है। मैंने आपको 9 टाइप्स ऑफ एपिथेलिया आउट ऑफ 18, और कल अब जो है 9 देख लेंगे, चैप्टर कंप्लीट। सबको आ रही बात समझ में? नेक्स्ट टिश्यू आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन सीक्वल इज कनेक्टिव टिश्यू, है ना। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू पहले दिन ही कंप्लीट हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? जनरल बातें करने के बाद पहली कैटेगरी सॉफ्ट, फर्स्ट डे में ही कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसिव क्लास में। फिर मैं हार्ड कनेक्टिव चालू करूंगा, लेकिन हेडिंग दूंगा स्केलेटन सिस्टम। क्या हेडिंग दूंगा एवरीवन? द रीजन इज जस्ट पास मी एन एनसीईआरटी बुक ओवर 11th एनसीईआरटी। कोई लाया है? यू शुड बी ब्रिंगिंग ऑन, सबके पास होना चाहिए। पास करें जल्दी जल्दी, एक यस। अब आप देखिएगा, एक मिनट ये होल्ड करें, पेज नंबर 104 आइए, देखिए जिनके पास है, और जिनके पास नहीं वो घर पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, 2 लाइन लिखा है बस, कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड, वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और उसमें फिर 3 लाइन कार्टिलेज पर, 5 लाइन बोन्स पर। इट्स अ जोक ऑफ एनसीईआरटी, मजाक है। देखो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक को 4 लाइन 3 लाइन में खत्म। ठीक है, और ब्लड के बारे में तो और ब्लंडर मिस्टेक, क्या लिख दिया, ये ऐसा ऐसा होता है, रेस्ट यू कैन लर्न मोर इन चैप्टर 17 एंड 13, सॉरी 17 एंड 18। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ा ब्लड का रोल क्या है, और बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आई एम एक्चुअली फॉलोइंग द डायरेक्शंस ऑफ एनसीईआरटी। तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू शुरू करेंगे, ब्लड लिम्फ पढ़ते हुए सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। खुद 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम कंजेक्चर में एक साथ पढ़ेंगे, बीवीएस एंड एलवीएस। एलवीएस पढ़ना मतलब 12th क्लास का चैप्टर इम्यूनिटी कंप्लीट हो जाएगा। क्या कंप्लीट हो जाएगा? आ रहा है सीक्वल समझ में? थोड़ा सा जंबल अप लगेगा कि कभी सर 11th के टॉपिक में, कभी 12th पहुंच गए, बोल रहा आज 12th का टॉपिक कवर हो गया, लेकिन यही तो कंसेप्ट है। सबको आ रहा है समझ में? रैंकर्स बैच में यही ऐसा ही होगा, तो काय को अलग से रैंकर्स बैच पढ़ोगे? सब लोग पढ़ो ना, यही पढ़ा तो रहा हूँ, हाई लेवल, लो लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अरे आया समझ में? ट्राई टू ब्लेंड योर माइंड। मैंने पहले दिन से आपको क्लियर कर दिया है कि आप समझे नेचर ऑफ स्टडी को, समझे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जा रहा है। क्वेश्चन क्रैकिंग मतलब मैं आपको एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स कैसे डेवलप होते हैं, कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, और फिर इसको अप्लाई करना। तुरंत क्वेश्चन बनाओ फटाफट। एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है, क्यों बना हुआ है ये देखिए, टॉप कॉर्नर ये देखिए, गॉबलेट सेल्स को कैसे दिखाया गया म्यूकस सिक्रीशन करते हुए, है ना। ठीक है, लेकिन लिखा ग्लैंडुलर है। क्या लिखा है? क्योंकि पूरा एपिथेलियम तो ग्लैंडुलर बन गया ना इस गॉबलेट की वजह से। किसकी वजह से? लेकिन ये गॉबलेट सेल्स खुद कैसे सेल्स है? यूनिसेलुलर ग्लैंड। कैसे हैं? एक्सेप्शन, बाकी बॉडी के सारे ग्लैंड्स मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि सारे ग्लैंड्स बनते हैं एपिथेलियम टिश्यू से। किससे? क्लियर? सो टुमारो वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन फ्रॉम हियर। यहां तक सबको क्लियर है?